Thank you, students, for the serene notes. Now I request our principal, Dr. Manisha Lal ma'am, to please come here and address the gathering and offer her insights. Good morning, respected Joint Director of St. Karen's Group of Schools, Edward Sir, and our esteemed guest and speaker for today, Saloni Priya ma'am, indeed, and dear parents and teachers, it is indeed an honor to welcome you all to today's session on parenting as partners, being with your teenager with logic and love. This proactive parenting session promises to offer deep insights into a topic that resonates with all of us who are raising, educating and nurturing teenagers in today's ever-changing world. Parents, for the first time, we are conducting a session of this nature, and I assure you that it will be worthwhile. It is designed to provide you with practical tools and knowledge to navigate the complexities of parenting teenagers, equipping you with the right balance of logic and love. We are delighted to have Ms. Saloni Priya ma'am with us, a celebrated psychologist, education consultant, and founder director of Umeed Counseling and Consulting Services, a multi-speciality positive psychology institution operating from Kolkata. With over 24 years of experience in the field of mental health, she has been a pioneer in the field of counseling in India and a strong proponent of positive psychology, building life skills for adolescents as well as adults. Her list of honors is long, but a few include the Community Care Award at the International Conference at Jaipur Convention 2020 and the Rotary Award for Best Women Entrepreneurship for Umeed in 2019. She is certified by the Australian Counselling Association as a professional supervisor and has been appointed as a consultant trainer at the Center for Cultural Research and Training under the Ministry of Culture, New Delhi. आज का सत्र हमारे सभी अभिभावकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था का दौर होता है जब बच्चे सबसे ज़्यादा बदलाव महसूस करते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। Therefore, this session focuses on how parents can be proactive in guiding their teenagers, not just by walking alongside them, but with understanding, patience and empathy. सेंट कैरेंस में हम ये मानते हैं कि जब अभिभावक और शिक्षक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। I am confident that today's session will be a valuable and empowering experience for all of you. Please join me in welcoming Ms. Saloni Priya, the director of Umeed and our eminent speaker for today, with a huge round of applause. Welcome, ma'am. One request I will, parents, if you will switch off your mobile or you can keep your mobile in the silent mode, it would be good. Thank you. I request Edward sir to please come forward and felicitate Saloni Priya ma'am. As a token of our gratitude, we would like to present the plaque and plant to Saloni ma'am. Parents, please give them a big round of applause. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And now we hand over the reins to Saloni Priya ma'am. तमसुमा ज्योति, आप सभी को मेरा अभिनंदन और बहुत बहुत दुर्गा पूजा, आने वाली दिवाली और छठ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एडवर्ड सर कि ये
मुझे यहाँ बुलाते हैं बहुत सारे आदर प्यार और सम्मान के साथ। ये कहीं ना कहीं मेरी भी मातृभूमि है। माई मदर इज फ्रॉम बिहार एंड मेरे नाना जी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल थे। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे बड़ों का ही कुछ आशीर्वाद और उनका संस्कार है कि हम ऐसा कुछ कर पाते हैं जो जीवन में हम लोगों से जुड़ पाते हैं और लोगों को उनके बेहतर कल के लिए तैयार कर पाए। आज आप जिन कुर्सियों पे बैठे हैं, हर दिन आपको एहसास है कि थोड़ा सा आप हर दिन अपने बच्चों के बैग के साथ आते हैं। देयर इज नो स्कूल विच इज कंप्लीट जब तक कि उसके पेरेंट्स वहां ना आए। और आज जो हम आपसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, क्योंकि जो टीचर्स आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, पिछले 3 साल से मैं बहुत रेगुलरली सेंट कैरेंस आ रही हूँ। और सबसे पहले एडवर्ड सर एंड शैरन मैम ने मुझे बुलाया कि सलोनी मैम इस बदलते परिवेश के लिए हमें अपने टीचर्स को भी तैयार करना है। तो हमने पहले टीचर्स के साथ काम किया, क्योंकि जो टीचर है, बताइए, वो सिर्फ टीचर है, वो भी पेरेंट है, वो भी पेरेंट्स है। तो टीचर एक ऐसा है जो टीचर भी है, पेरेंट भी है, और वो भी समाज के इस बदलाव को देख रहा है। आप लोग सिर्फ पेरेंट हैं या आप भी टीचर्स हैं? दोनों हैं? कितने लोग अग्री करते हैं कि मैडम हम दोनों हैं? क्योंकि बहुत से लोग आजकल मुझे बोलते हैं कि मैडम हम अच्छा स्कूल में डाल दिए हैं, अब जो करना है स्कूल करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। एंड आई एम श्योर जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो ये मानते हैं, और मेरा मानना है आप वो टीचर हैं अपने बच्चे के जो हर साल बदलते नहीं। स्कूल का क्लास टीचर हर साल बदलता है, और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है पार्टनर्स विद पेरेंट्स। आज ये जो बच्चा है 14 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, कल जब 25 साल का होगा तो क्या मैं और आप डिसाइड कर पाएंगे कि इतना पेरेंट्स का बनाया है और इतना स्कूल का? नहीं कर सकते। जैसे आज अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो बहुत सी चीजें जिनसे मैं अपने जीवन को रोज जीती हूँ, वो मुझे मेरे पेरेंट्स से ज्यादा मेरे स्कूल ने सिखाया। और इसीलिए स्कूल कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई संस्था नहीं है। अ पार्ट ऑफ स्कूल विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी फॉर लाइफ। एंड दैट इज व्हाई स्कूल एक जरिया है, एक माध्यम है जिसमें हम पेरेंट्स और टीचर्स दो पटरी की तरह साथ साथ चलते रहे तो हमारे बच्चे की जीवन की गाड़ी कभी भी डिरेल नहीं हो सकती। और इसीलिए एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए जितने लोग आज यहाँ आए हैं। एंड कांग्रेचुलेशंस टू मनीषा मैम। मुझे पता है आज बड़ी जद्दोजहद की गई है, आपको रिक्वेस्ट भी किया गया है, आपको रिमाइंड भी किया गया है, उसके बाद आपको कहा गया है कि आज यही रिपोर्ट कार्ड मिलेगा ताकि आप जरूर आए। ये सारी कोशिश हमने क्यों की? इसलिए नहीं की है कि हम आपको ज्ञान देना चाहते हैं कि पेरेंट कैसे बनना है। पेरेंटिंग देखिए किसी को सिखाई नहीं जाती, क्योंकि पेरेंटिंग क्या है? एक शब्द में बताइए, पेरेंटिंग क्या है? कोई जॉब है, बिजनेस है, व्यापार है, क्या है पेरेंटिंग? बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रही है। यस यस यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या है? फिर से बोलिए मैम। फीलिंग्स, इमोशंस। वेरी गुड मैम। हमारा ये रिश्ता बहुत ज्यादा फीलिंग्स और इमोशंस से जुड़ा हुआ है ना। हमारा बच्चा हमारे लिए क्या है बताइए? आपका बच्चा आपके लिए क्या है? जिंदगी है, सब कुछ है। लेकिन जब वो बच्चा 9th-10th में आता है तो कितने लोगों को लगने लगता है पता नहीं क्या सोचता है, कुछ तो बताता नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? कितने लोगों को लगता है कि छोटा था तो बहुत अच्छा, ये जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है मैडम बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? राइट? तो देखिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं ना एक दूसरे से बात करने के लिए। ये वही छोटा बच्चा है, लेकिन जैसे जैसे जब बच्चा बड़ा होता है और खास तौर से इस उम्र में आता है, देखिए
यही मैं आपको कह रही थी कि जब बच्चे बदलते हैं तो टीचर्स को भी सीखना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों को टीचर ने जो बोला बच्चा मानता है। क्लास 10 का बच्चा क्या सोचता है, क्यों करे। इसीलिए जब समाज बदल रहा है, हमारे बच्चे बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे और आपको भी समझना जरूरी है कि हमें क्या बदलना है और उस बदलाव का हमारे बच्चे पे क्या इम्पैक्ट है। मैं एक शिशु मनोवैज्ञानिक हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने आपके बच्चों से बहुत सीखा है। मैंने सालों साल बच्चों के साथ काम किया है, और मैंने काम की जब शुरुआत करी थी तो MBA कॉलेजेस से की, क्योंकि उस समय सर साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता था कि बच्चों का प्लेसमेंट कराना है। मैडम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर दीजिए, GD के लिए तैयार कर दीजिए, ताकि हमारे कॉलेज में सबका प्लेसमेंट हो जाए। आज 25 साल बाद मैं क्लास 1 के साथ भी काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि क्या 22 साल में, 24 साल में आप किसी की पर्सनालिटी बना देंगे? पर्सनालिटी बनती है इस उम्र से, पर्सनालिटी बनती है एटीट्यूड से, स्किल से। और इसीलिए देखिए, जब हमने टीचर्स को ये ट्रेनिंग कराई, और यकीन मानिए ये जो टीचर्स हैं यहाँ पे, मैम को आप देख रहे हैं, एंजेला मैम को देख रहे हैं, आनंद सर इज हियर, सुधीर सर वाज हियर, ये जो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन टीचर्स ने मेरे साथ 6 महीने ट्रेनिंग करी है, केस स्टडीज किए हैं, एग्जाम दिया है। क्यों सीखा? क्योंकि ये अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर है, लेकिन बच्चों के मनोविज्ञान को समझना हर टीचर और पेरेंट की जिम्मेदारी, ताकि आप अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छे कोच और मेंटर बन सकें। क्योंकि आज की इस दुनिया में भटकन भी बहुत है, बहकावा भी बहुत है, झूठ भी बहुत है, और व्यापार भी बहुत है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। और मैं क्यों आपसे बात कर रही हूँ, बाकी बहुत अच्छी अच्छी बातें मनीषा मैम ने बोली, सब सच बोली, लेकिन आप एक ही बात याद रखिए, अगले 1 घंटे के लिए यहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई लॉयर नहीं है, हम सब सिर्फ पेरेंट्स हैं। और बच्चों ने जो आज एक बहुत सुंदर सी प्रेयर करी, काउंट योर ब्लेसिंग। शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई ब्लेसिंग नहीं है कि हमारे पास एक हेल्दी बच्चा है, जिसके जीवन को गढ़ने में हमें योगदान देना है। और उसके लिए हमें सजग होना, अवेयर होना, सचेत होना बहुत जरूरी। इसीलिए देखिए, बिल्डिंग बॉन्ड्स विथ योर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, स्कूल और पेरेंट इन 2 हाथ की तरह है। आपने देखा है, कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है तो एक हाथ अंदर रखता है, जो कि मिट्टी को सपोर्ट करता है, और दूसरा हाथ बाहर से पानी लगा लगा के उसको थप 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 मारता है, घड़े का शेप आता है। स्कूल और पेरेंट भी ऐसे ही है, एक सपोर्ट करता है तो दूसरा स्ट्रिक्ट होता है, दूसरा सपोर्ट करता है तो पहला वाला स्ट्रिक्ट होता है। जिस दिन ये अंडरस्टैंडिंग हम दोनों में हो जाए, लेकिन यही उम्र है जहां ये अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ होती है, क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा हुआ है, वो बच्चा क्या करता है, स्कूल में कुछ बोलता है, घर में कुछ होता है कि नहीं। अभी रिसेंटली एक स्कूल में हुआ, पेरेंट आया और बहुत गुस्सा हुआ प्रिंसिपल पे कि मैडम आप लोग बोलती हैं कि पेरेंट लोग को बात करना चाहिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप हमारे मेल का जवाब नहीं देती हैं, हम आपसे 1.5 महीने से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, मैडम आप लोग इतना बिजी हैं। प्रिंसिपल बोले कि सर हम तो रोज स्कूल में रहते हैं शाम को 7 बजे तक, और हम बिजी आप ही लोग के लिए हैं, हमको तो कोई मेल ही नहीं मिला है आपका। तुरंत PA को बोला गया, सेक्रेटरी चेक करो कहाँ मेल है, कैसे मिस हुआ है। सच क्या था, मम्मी ने गुस्सा होके बेटे को बोला कि तुम बिल्कुल बात नहीं सुनते हो, रोज तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम कहते हो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, हमको तुम्हारा प्रिंसिपल से बात करना है, हम तुम्हारे प्रिंसिपल को मेल लिखेंगे। बच्चा मेल ID दिया, वो मेल ID जो दिया था, अगर स्कूल का मेल ID है principal@gmail.com, वो ID दिया है principal@yahoo.com। मेल पापा लिखते हैं कि मैडम आई नीड टू मीट यू, आई एम कंसर्न। बच्चा मेल खोलता है, जवाब देता है, डियर मिश्रा सर, थैंक यू फॉर योर मेल, आई एम करेंटली ट्रैवलिंग, आई कैन लेट यू नो। पापा को मेल मिल जाता है, पापा सोचते हैं अच्छा मैडम बिजी है, बाद में कहेंगे। अगले हफ्ते पापा फिर मेल भेजते हैं, वो बच्चा फिर जवाब देता है। यही 1.5 महीने से चल रहा है।
और जब बच्चे से पूछा गया कि ये मेल आईडी कौन बनाया, हम ही बनाया और हम ही मैनेज कर पूरे स्कूल का नकली वेबसाइट बनाया। अब तारीफ की बात यहाँ ये है कि दिमाग तो इतना है और बहुत टेक सेवी भी है, लेकिन यूज कहाँ करता। तो आज का जो यूथ है वो बहुत स्मार्ट है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है अपने बच्चे को देख के कि बहुत ही स्मार्ट है, हम तो इसके उम्र के थे तो हमको कुछ नहीं पता, लगता है कि नहीं हमको? तो इसीलिए हमको और आपको बात करना जरूरी है, लेकिन हमने जो सीखा है वो हम अपने बच्चे को अगर नहीं सिखा पाएंगे तो हमारा बच्चा इस दुनिया में भटक सकता है। और इसीलिए देखिए, जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ ये एक साइंटिफिक आर्ट, साइंस है बच्चे को बढ़ाना। साइंस क्यों है? क्योंकि किस उम्र में बच्चा क्या करता है ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आपको लग रहा है ना एकदम ठीक बोल रही हूँ मैम, ऐसे ही मेरा बच्चा करता है। तो ये साइंस है कि हर उम्र के एक ट्रेट होता है। आर्ट क्या है? ये साइंस होते हुए भी हर बच्चा अलग है। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला में आप सबको फिट कर दीजिए। कितने लोग यहाँ हैं जिनके 2 बच्चे? हाथों पर ये फोटो जरूर खींच लो, हम आखिरी पीढ़ी है जिनके 2 बच्चे। इसके बाद तो ये पीढ़ी लुप्त हो जाएगी, लोगों से एक ही नहीं समझ रहा है। हम ही हैं जिनके 2 है। कितने लोगों को लगता है कि पहला बच्चे को पाल के बड़ा किए तो हम सोचे कि हम सीख गए हैं, दूसरा बहुत आसान होगा, दूसरा और मुश्किल और मुश्किल। कितने लोगों को लगता है कि दूसरा ज्यादा मुश्किल है? तो यही मैं समझा रही हूँ, साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में बहुत यूनिक होता है। और इसीलिए माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है कि हम लगातार सीखते हैं, कि अपने अनुभवों से भी सीखें और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उससे भी सीखें। इसीलिए मैं इन पेरेंटिंग सेशंस को कहती हूँ लव। जैसे मैम ने कहा कि मैम बच्चा हमारे लिए फीलिंग है, तो पहली फीलिंग लव है। लेकिन जब बच्चा 9, 10, 11, 12 में आता है तो लव चला जाता है खिड़की के बाहर। और पूरे दिन घर में क्या सुनाई पड़ता है? तुमसे तो बात करना बेकार है। कितने लोगों ने अपनी बेटियों को कहा कि जब तुम बड़ी होगी तब समझोगी, अभी नहीं समझ में आ रहा। इस उम्र के बच्चे को लगता है कि जब बड़े होंगे तब समझेंगे, तो तब बात करिएगा, अभी छोड़ दीजिए, अभी हमको मोबाइल पे गेम खेलने दीजिए। अगर आज आप अपने बच्चे को इस उम्र में कहते हैं कि हम सड़क के नीचे ना वो लालटेन में पढ़े हैं, सड़क पे पढ़े हैं, तुम क्या जानोगे? तो एक बच्चे ने मुझसे रियली पूछा कि मैम मेरे पापा क्यों सड़क पे लाइट के नीचे पढ़ते थे? हम बोले बेटा पापा का कहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उसने बोला तब ये बोले ना, हर समय हमें कहते हैं कि तुमको पता है हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी और हम लोग ये स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे। मैम हम गूगल में देखे हैं, जहाँ मेरे पापा रहते थे बचपन में, उस गांव में 1978 से लाइट आई थी, तो ये क्यों सड़क पे पढ़ते थे? ये है आज की जनरेशन, उसकी डेटा बिल्कुल सही है कि 10 साल पहले से वहाँ लाइट था, तो फिर ये स्ट्रीट लाइट पर क्यों पढ़ते थे? इनके घर में तो लाइट होना चाहिए। So you know, don't talk things which are called empty utterance. इन चीजों को हम क्या कहते हैं? वो कहना जिसमें आपकी भावना कुछ और है और आप कह कुछ और है। तो बच्चों को ना डायरेक्शन मिलता है, ना उनको सोच मिलती है कि मेरे माँ बाप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। और देखो कोई जनरेशन गैप नहीं है। मेरी 25 साल में मेरी जो सीख है वो यही है। ये देखिए, पहले हमारे माँ बाप इस जनरेशन के बेबी बूमर्स कहा जाता है। ये वो जनरेशन थी जहाँ बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी और वहीं से एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय हमारी सोसाइटी में डेवलप हुआ। हम और आप इस जनरेशन में हैं, जिस जनरेशन ने ट्रंक कॉल भी किया है। याद है ट्रंक कॉल किया जाता था, पूरा परिवार खड़ा रहता था काले वाले फोन के बगल में। अभी ट्रंक कॉल आया है, एक आदमी बात करता था, 5 आदमी साथ मिलाते थे, हाँ हाँ ठीक है बोल दो, हम लोग सब ठीक है। और आज हम मोबाइल भी यूज करते। तो हमारी जनरेशन को जनरेशन एक्स कहा जाता है। आपके बच्चे जो हैं
वो जनरेशन वाई नहीं है। जनरेशन वाई में मेरा बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा 30 साल का है, छोटा 27 साल का। और अब जनरेशन 20 साल में नहीं बदल रही है, हर 10 और 7 साल में बदल रही है टेक्नोलॉजी के साथ। तो अब आपके जो बच्चे आज सवेरे मेरे साथ बैठे थे वो जेन जेड है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे, और इनकी लड़ाई और इनके चैलेंजेस मेरे और आपकी दुनिया से बहुत अलग है। तो क्या हम इनको इस दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, या हम इन बच्चों को अपने अतीत में ले जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब हर पेरेंट को देना चाहिए। और जब आप ये जवाब देंगे तो आपके उत्तर और आपके प्रश्न दोनों बदल जाएंगे। What are we trying children to do? अपनी स्टोरी जरूर बताइए, उससे ज्यादा पावरफुल कोई कहानी नहीं है जब आप अपनी कहानी बता सकिए। और हम में से जितने यहाँ बैठे हैं, हमने जिंदगी को 0 से नहीं शुरू किया, हम में से कईयों ने माइनस से शुरू किया या नहीं? और आज हम अपनी समाज में एक अपनी साहिलियत बना चुके हैं। हमने अपने बच्चों को कंफर्ट दिया है। आज सवेरे मैंने आपके बच्चों से यही कहा है कि आप में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि आपके पेरेंट्स कभी ऐसे स्कूल में नहीं गए, लेकिन उन्होंने ये स्कूल आपके लिए चुना है ताकि वो आपको एक बेहतर भविष्य दे सके। सारे हाथ खड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों को एहसास नहीं, लेकिन कई बार जो बातें करनी चाहिए हम वो नहीं करते। हम बच्चों को कह देते तुम नहीं समझोगे। हमेशा जब मैंने बच्चों से बात की, और अब आप मेरी बात समझिए, जब मैं बच्चा कह रही हूँ तो वो 26 साल का हो सकता है, 28 साल का हो सकता है, 32 साल का हो सकता है, क्योंकि मुझे हर जगह बच्चे मिलते हैं। अभी मैं ओमान से आई हूँ, और ओमान में जब मैं वर्कशॉप कर रही थी सर, तो वन टीचर वॉक टुवर्ड्स मी एंड ही सेड मैम दिस इज माय 3rd वर्कशॉप विथ यू। तो आई स्माइल आई, मुझे लगा कि शायद इसके पहले जिस स्कूल में होंगे वहाँ इन्होंने मेरे से ट्रेनिंग की हो। उसने मुस्कुरा के कहा मैम यू केम टू माई स्कूल व्हेन आई वाज इन क्लास 10। तब मुझे उम्र का एहसास होता है, ऐसे नहीं होता। और मुझे लगा कि सचमुच आज से 20 साल पहले ये किसी स्कूल में नहीं होगा। नाउ ही इज अ यंग ब्राइट टीचर एंड ही सेड मैम आई लुक्ड एट यू एंड आई सेड शी इज सलोनी मैम, शी केम टू माय स्कूल। एंड दैट इज हाउ आई हैव लर्न फ्रॉम पीपल कि जिंदगी में क्या मैटर करेगा आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या हम वो अपने बच्चों में बना रहे हैं या नहीं बना रहे। देखिए, ये जो जनरेशन गैप है ये एक मिथ्या है। जनरेशन में गैप नहीं होता। आज जिन कुर्सियों पे आप बैठे हैं कल आपके बच्चे। गैप कहाँ आता है? कम्युनिकेशन। जब हम एक दूसरे की बात सुनना और समझना बंद कर देते हैं तब गैप आता है। जनरेशन में गैप होता ही नहीं है। जनरेशन तो कॉन्टिन्यूटी का नाम है। यस और नो? तो गैप कहाँ है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में सिर्फ इंसान है जो भाषा का प्रयोग कर सकते। तो अगर हम अपनी भाषा, अपने शब्दों के चयन को थोड़ा सा बदल लें तो शायद हम अपने बच्चों से जुड़ जाएं, उनकी दुनिया से जुड़ जाएं, उनकी समस्याओं से जुड़ जाएं और उनको सही मार्गदर्शन दे सकें। यही हमारा रोल है। लेकिन ये कहना आसान है, करना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि आज जो आपका बच्चा है, देखिए ज्यादातर पेरेंट्स, मैं ये रिसर्च करती हूँ, उम्मीद मेरी संस्था ऐसे बहुत से रिसर्च करती है, छोटी सी संस्था है पर शायद हमारा अफेक्ट बहुत दूर तक जा चुका है। मैं देश भर में कम से कम 7 विदेशों में हम ये काम कर रहे हैं। हमने ये रिसर्च किया था और पेरेंट्स से पूछा था कि आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स ने ये कहा कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैम बड़ा हो तो जिम्मेदारी समझे? चाहते हैं कि नहीं? तो देखिए मेजॉरिटी लोगों ने ये लिखा था, मेजॉरिटी। सेकंड लोगों ने क्या कहा था? हार्ड वर्किंग। मैम आजकल का बच्चा लोग मेहनत नहीं करना चाहते, वो लोग क्या कहते हैं? हार्डली वर्किंग। पर हमारी जनरेशन का वैल्यू सिस्टम क्या है? हार्ड वर्किंग। सेंट कैरल्स का लोगो भी यही है, हार्ड वर्क रीप्स बिकॉज दे बिलीव इन। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है। देन इट इज